Hi guys, let us know about physics. Today we will study what is physics. All of you have studied or seen in earlier video about science and scientific method. Now today we will see what is physics. If we try to define or talk about what is physics, then we have to know that physics has the word physics has derived from the Latin word physis. Physics is derived from the Latin word physis, and physis means to know. In view of science, we have already learned that science is the study of our environment and the principles has been derived from our environment by studying the any incident related to our environment. Now we will study about physics. Then we have to know that it has been derived from the word physis. That means physics is derived from the Latin word physis. It means to know. If we want to define it, so physics is the branch of science in which we study about nature and natural phenomena. If we want to understand, we talk about what is nature or natural phenomena, then you have to see or you have to think about your environment, which is given by which is presence in your environment, or that means all the situation, all the condition presence around you is nature. And natural phenomena means as how kind of rainbow is formed, raining, storms, day and night, weather change, etc. If we talk about physics, it is it can be said in other words that it is the branch of science in which we study the matter, all forms of energy and interaction of energy with matter. तो बच्चों, अगर हम बात करें कि फिजिक्स है क्या, तो फिजिक्स को हम हिंदी में भौतिकी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? भौतिकी. और ये जो भौतिकी शब्द है, ये संस्कृत में यूज किया जाता था. संस्कृत में ये इसका अर्थ होता था बाह्य संसार. बाह्य संसार भौतिक शब्द आता था संस्कृत में और उसी से आया है भौतिकी. तो फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं जैसे दिन रात का होना,
मौसम परिवर्तन, चंद्रमा की स्थिति जैसी अन्य अन्य घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूप और ऊर्जा का द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रियाओं अर्थात ऊर्जा और द्रव्य के आपसी सहसंबंध का अध्ययन हम भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। तो हम आशा करते हैं बच्चों कि आप फिजिक्स को डिफाइन करना सीख गए हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि फिजिक्स क्या है तो एक छोटा मतलब एक सामान्य कॉन्सेप्ट आपको मिल चुका होगा, एक सिंपल डिफिनीशन मिल चुका है कि आप भी इस बारे में जान गए हैं कि फिजिक्स वास्तव में होता क्या है। फिर एक बार हम दोहरा दे रहे हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study the nature and natural phenomena, and in other words physics can be defined as, or it can be said that the branch of science in which we study the matter, all forms of energy and interaction between energy and matter is known as physics. Students, now we will classify the physics as you have learnt in earlier videos, in earlier classes, that the branch of science is physics, and area of physics is not limited. It is broad, it is infinite. But as study of science has increased, as the study of physics has increased, it is divided into main branches known as classical physics and modern physics. Classical physics and modern physics. And if we try to know about what is classical physics and modern physics, we have to understand the particles. That means we have to study we have to learn about the matter. Particles. Matters are made of small particles, and particles there are two types in view of physics: macroscopic particles, macroscopic particles, and microscopic particles. Microscopic particles. Macroscopic particles related to classical physics and microscopic particle related to modern physics. Macroscopic particles means the particles which are seen simply, but microscopic particles are the particles, smallest particles, which can be seen only by microscope or other equipments. Then microscopic particles are studied in branch of physics, the classical physics, and microscopic particles were studied in the modern physics. Now we have to see the classification of classical physics, and classical physics is divided in 5 branches: mechanics, thermodynamics, electromagnetism, classical wave mechanics, and sound optics. If we try to know about mechanics, what is mechanics? Mechanics is the branch of physics in which we studied the
motion of the motion of the particles, microscopic particles at minimum velocity level. Mechanics is the branch of physics in which we study the velocity of microscopic particles at minimum velocity level. That means मैकेनिक्स को हम हिंदी में यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी भी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम स्थूल कणों को अध्ययन करते हैं, उनके गति का अध्ययन करते हैं निम्न वेग पर हम उससे संबंधित अध्ययन करते हैं। सीधे शब्दों में यदि हम कहें तो यांत्रिकी का अर्थ होता है यंत्र से संबंधित। और जैसा कि आप जानते हैं, ऑल द मैकेनिकल वर्क आर डन बाय इंजन्स एंड दीज आर डिपेंड ऑन द वेलोसिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस। देन आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज मैकेनिक्स, एंड नाउ वी विल talk about thermodynamics. Thermodynamics is the branch of physics in which we study about produce of heat, behavior of heat, and conduction of heat from one part to another part of a system or in view of other conditions. कहने का मतलब ये थर्मोडायनामिक्स को हम ऊष्मा गतिकी कहते हैं, और ऊष्मा गतिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी वस्तु में उत्पन्न ऊष्मा और उसके संचरण का अध्ययन करते हैं कि ऊष्मा कैसे किसी वस्तु के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित होती है। इसका अध्ययन हम थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करें तो यह भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम यह जानने का प्रयास करते हैं और या इस बात का अध्ययन करते हैं कि विद्युत और चुंबकत्व ये दोनों एक ही हैं, इनमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड से, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ये जो इंटरेक्शन है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बिहेवियर में, उसका अध्ययन हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Hence we can say that electromagnetism is the branch of physics in which we studied about the electrical and magnetic behavior. Now we will talk about classical wave mechanics and sound. Classical wave mechanics and sound is the branch of physics in which we studied about the waves, production of waves, conduction of waves, and what is the process of wave formation and how can we got the relation between wave and energy related to it. It is studied in classical wave mechanics and sound. And optics is the branch of science in which we study about fifth branch optics है। तो optics क्या है? तो optics is the branch of physics in which we studied about light, behavior of light as reflection, refraction, polarization, etc. जैसा कि आप जानते हैं, इसे हम हिंदी में प्रकाशिकी कहते हैं। ऑप्टिक्स को प्रकाशिकी कहते हैं। यह भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम प्रकाश, हम जैसा कि जानते हैं प्रकाश ऊर्जा का ही स्वरूप है, तो प्रकाश और उसके अन्य व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि। इससे संबंधित यंत्रों का भी अध्ययन करते हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ लाइट, जिसे हम कहेंगे कि कैसे हम प्रकाश के जो नियम एवं सिद्धांत पढ़ते हैं उनके उपयोग
हम कैसे करते हैं, उनके लिए किस प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है जिससे हमारे लिए लाभकारी कार्य किए जा सके, इन चीजों से संबंधित अध्ययन हम करते हैं ऑप्टिक्स में। नाउ द सेकेंड पार्ट, मॉडर्न फिजिक्स is the branch of physics in which we study about the microscopic particles. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी सूक्ष्म कणों के बारे में, यानी किसी पदार्थ का जो माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी है वो मॉडर्न फिजिक्स में है। जैसा कि जब आप जानते हैं ये जो आधुनिक भौतिकी कहलाती है, जो आगे चलकर विकसित हुई है, ये अलग से मॉडर्न फिजिक्स के रूप में देखा जाता है। पहला इसका पार्ट होगा रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी क्या है? इफ वी ट्राई टू डिफाइन और ट्राई टू टॉक अबाउट रिलेटिविटी, रिलेटिविटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द पार्टिकल्स आर बॉडीज विच आर मूविंग एट द वेलोसिटी ऑफ लाइट। यानी रिलेटिविटी भौतिकी का वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ के उन कणों के बारे में अध्ययन करते हैं जो प्रकाश के वेग से गतिशील होते हैं। प्रकाश के बराबर वेग से गतिशील पिंडों का अध्ययन हम रिलेटिविटी में करते हैं, जिसे सापेक्षवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत। दूसरा आया क्वांटम मैकेनिक्स। यह ऊर्जा के, जैसा कि आप जानते हैं मैक्स प्लांक ने क्वांटम थ्योरी दिया था कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में प्रकाश ऊर्जा जो है ट्रांसफर होती है। तो अगर इसकी हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द पार्टिकल बिहेवियर ऑफ एनर्जी and it is the bridge between classical wave mechanics and sound and classical wave mechanics and sound and mechanics। यानी कहने का मतलब कि क्वांटम मैकेनिक्स भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम ऊर्जा के क्वांटम थियरी के आधार पर, यानी पदार्थ जो है कण के रूप में तो होता ही है, साथ ही साथ यानी एक ही पदार्थ जो है कणीय व्यवहार भी कर सकता है और तरंग के जैसा भी व्यवहार कर सकता है। तो इसकी बात हम करेंगे। फिर एटॉमिक फिजिक्स की जब बात करते हैं हम, तो एटम के बारे में आप जानते ही हैं। एटॉमिक फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट द एटम, हाउ कैन एटम इज फॉर्म्ड एंड how can we find the energy, how can we use the energy of atoms? These topics are studied in atomic physics, and nuclear physics is the branch of physics in which we studied about the nucleus of an atom and how can a nucleus is formed, what is the use of this nucleus, and as you have studied earlier the experiment of Rutherford. Rutherford has told us first that what is nucleus, and nucleus के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो ये अब स्टडी हम करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पदार्थ का जो एटम का जो न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है, हम उदाहरण के तौर पर आपको बता रहे हैं कि कैसे इससे क्या लाभ है, ये इस ब्रांच के अध्ययन का उद्देश्य क्या है। तो ये जो नाभिकीय भौतिकी है, इसमें हम पदार्थ के किसी परमाणु के नाभिक के निर्माण के बारे में, और जैसा कि आप जानते हैं नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एक साथ रहते हैं, तो यहां आप जानते हैं कि ये प्रोटॉन पॉजिटिव है और सारे प्रोटॉन एक साथ नाभिक में कैसे रह जाते हैं। तो इसके लिए हमें नाभिक के संरचना के बारे में अध्ययन करना होगा।
इन प्रोटॉन को एक साथ रखने के लिए जो ऊर्जा खर्च की गई वह नाभिक में ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित होती है और उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम फिर इस नाभिक को तोड़कर कर सकते हैं, जिसका आज न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के रूप में यूज आप देख रहे हैं। और इसके अन्य भी बहुत सारे उपयोग हैं जिसका अध्ययन हम न्यूक्लियर फिजिक्स में करते हैं। तो बच्चों, ये क्लासिफिकेशन था सेकेंडरी लेवल पर फिजिक्स का। फिजिक्स दो भागों में बटा हुआ है, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के 5 भाग हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड, ऑप्टिक्स। मैकेनिक्स को हम हिंदी में यांत्रिकी, थर्मोडायनामिक्स को उष्मागतिकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को विद्युत चुंबकत्व, क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड को चीर सम्मत तरंग भव यांत्रिकी और ध्वनि, और ऑप्टिक्स को हम प्रकाशिकी कहते हैं। और इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ही लिया है। मॉडर्न फिजिक्स को हम आधुनिक भौतिकी, और आधुनिक भौतिकी 5 भागों में बटा हुआ है। रिलेटिविटी, जिसे सापेक्षतावाद का सिद्धांत, सापेक्षवाद कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम यांत्रिकी है। एटॉमिक फिजिक्स यानी परमाणु भौतिकी है। न्यूक्लियर फिजिक्स जो नाभिकीय भौतिकी कहलाता है। तो बच्चों, ये जो 5 और ये 4 ब्रांच है, 5 और 4 ये 9 ब्रांच के कुछ टॉपिक का अध्ययन हम सेकेंडरी लेवल पर करेंगे, क्लास 11th और 12th में मिलकर। बट हम बात करें अगर ये अदर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं कुछ, जिनका कम से कम नाम आप जान लीजिए। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, मेडिकल फिजिक्स, बायोफिजिक्स, chemical physics and geophysics. These are the modern branches of physics, but we have not to study these branches at secondary level. These branches will be studied at higher at upper level, that means undergraduate courses and postgraduate courses. These branch will be studied in at graduate level and post graduate level. यानी ये जो अदर ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स हैं, इनका अध्ययन हमें 12वीं यानी माध्यमिक स्तर पर नहीं करना है, 11वीं 12वीं में नहीं करना है। ये पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर और ग्रेजुएट स्तर यानी स्नातक और परास्नातक स्तर पर इन ब्रांचेज का अध्ययन हमें करना होगा। हाँ, थोड़ा सा जानना जरूर चाहिए। ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ये पदार्थ के संरचना का अध्ययन है। प्लाज्मा फिजिक्स जो है, प्लाज्मा स्टेट के बारे में आप 9वीं कक्षा में पढ़े हैं। तो प्लाज्मा जो स्टेट होता है, 4th स्टेट ऑफ मैटर होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। हाई एनर्जी फिजिक्स, उच्च ऊर्जा भौतिकी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये अभियांत्रिक भौतिकी है। कॉस्मोलॉजी, मेडिकल फिजिक्स, बायोफिजिक्स, केमिकल फिजिक्स, और ये आज सबसे आधुनिक ब्रांच है भौतिकी का जियो फिजिक्स, जिसे हम भू भौतिकी कहते हैं। इन सब का अध्ययन हम स्नातक और परास्नातक स्तर पर करेंगे। तो बच्चों, एक ये हमारे स्तर की 9 ब्रांचेज हैं, जिनके कुछ टॉपिक्स हमको 11वीं और 12वीं में सामान्य स्तर पर पढ़ना है। फिर ये ब्रांचेज और ब्रॉड होकर आपको ग्रेजुएट स्तर पर यानी बीएससी बीटेक करने वाले छात्रों को मिलेंगी, जिनके बारे में हमें अध्ययन करना होगा। तो आज हमने जो बात किया फिजिक्स और फिजिक्स के क्लासिफिकेशन का, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। देखेंगे एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स एंड व्हाट इज टेक्नोलॉजी। तो बच्चों, तैयार रहिए इस टॉपिक के लिए। हम आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। यदि लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।